Dear students, good morning to all of you. Now I am going to teach you the fourth chapter in GK, desert plants and animals. Now we will study about the adaptation of desert plants and animals. Living organisms live everywhere on this planet. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितने भी जीव इस ग्रह में हैं वो कहीं भी रह सकते, कहीं भी हर क्षेत्र में पाए जाते हैं. They live deep inside the oceans where there is no light, as well on high mountains which is always covered with snow. वे गहरे महासागर में, जहाँ ऊंची ऊंची पर्वत है, जहाँ पर कोई रोशनी होती है, बर्फ से ढके हुए रहते हैं. Plants and animals living in different places are different from each other. प्लांट्स और जो एनिमल्स है, पौधे और जानवर जो है, जो डिफरेंट प्लेसेस में रहते हैं, वो एक दूसरे से विभिन्न रहते हैं. दे अडेप्ट देमसेल्व्स टू देयर सराउंडिंग्स. ये अपने अपने जो है आसपास में जो है वो अनुकूल, अपने आप को अनुकूल रखते हैं. Deserts are places that are extremely hot and almost dry throughout the year. ये रेगिस्तान ऐसी जगह है जहां पर हमेशा हर एक क्षेत्र में क्या होता है कि हमेशा गर्म और सूखा रहता है सालों भर. इन डिजर्ट्स द टेम्परेचर इज हाई एंड देयर इज वेरी लेस वाटर. और यहाँ का जो तापमान है वो बहुत ही हाई रहता है और पानी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है. सो प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन डिजर्ट adapt themselves according to its climate. इसीलिए यहाँ के पेड़ पौधे और जानवर जो है, यानी कि रेगिस्तान में रहने वाले पेड़ पौधे और जानवर जो है, वो अपने अपने जलवायु के अनुसार जो है वो यहाँ अडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं. Now dear students, you have to write true or false against this statement. With the help of presentation, you have to write true or false. I have given the answer also. The first one is, most desert plants have long roots that penetrate deep inside the soil in search of water. यानी कि बहुत सारे, यहाँ पर जो पौधा दिखाई दे रहा है वो कैक्टी का है, कि बहुत सारे जो डिजर्ट प्लांट्स जो है, क्या उनमें लंबा रूट्स होता है जो गहरे, दैट पेनिट्रेट डीप इनसाइड द सॉइल, इनसाइड पानी की तलाश में उनके जो होता है, जो जड़ जो होता है वो डीप इनसाइड द सॉइल के एकदम भीतर चले जाते हैं. क्या ये सही है? तो हाँ, सही है, क्योंकि पानी की तलाश में जो है वो उनकी जड़ें जो होता है वो एकदम मिट्टी के एकदम सॉइल के भीतर चली जाती. दिस आंसर इज ट्रू. The second one is, a camel has a hump where the food is stored. Is it true or false? Dear student, it is false. Do you know that in a camel's hump does not hold water at all? It actually stores for fat. जैसे कि बच्चे आप लोग जानते हैं कि कैमल्स के हम्प यानी कुबर में जो है वो पानी या फूड स्टोर नहीं होता है, यह जो होता है फैट, वसा को संग्रहित करता है. Next question is, the stem of cacti are reduced to spines to prevent loss of water by transpiration. This answer is false. You have given the feature of this plant. Most species of cacti have lost true leaves, retaining only spines. Spines is kata, which are highly modified leaves, as well as defending against herbivorous. Spines help prevent water loss by reducing airflow close to the cactus and providing some shade. कैक्टी की अधिकांश प्रजातियों ने सच्ची अपनी पत्तियों को जो होता है, जो उसका अपना पत्ता होता है वो खो देता है, केवल कटाई को बनाए रखना, यानी कि स्पाइन को बनाए रखना, जो अत्यधिक संशोधित पत्तियां होती है. शाकाहारी के खिलाफ बचाव के साथ साथ, यानी कि अगर ये अपने आप को बचाने के लिए
यानी कि कोई अगर इसे खाता है उसको प्रेडेटर्स प्रे से बचाने के लिए कटाई कैक्टस यानी स्पाइन कैक्टस के करीब हवा के प्रवाह को कम करके और कुछ छाया प्रदान करके पानी के नुकसान को रोकने में यह मदद करता है। नेक्स्ट Next is jackrabbits stay cool through their large ears which full of blood vessels that carry warm blood to the surface of their skin. This allows them to cool as they rest in the shade. Dear students, you see that this picture is given of jackrabbits. Just it is looking same as like as here. ये जो है बिल्कुल रैबिट की तरह दिखता है। The large ears of the jackrabbit are used in cooling, radiating heat via an extensive network of blood vessels, but these animals are able to stay cool by releasing excess heat from their oversized ears. It is true that यह ट्रू है कि जैक खरगोश जो होते हैं वो अपने बड़े बड़े कानों का उपयोग जो है रक्त वाहिकाओं के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से अपने आप को ठंडा करने में यूज करते हैं। विकिरण गर्मी में पाया जाता है, लेकिन इन जानवरों को अपने ओवराइज्ड कान से अतिरिक्त गर्मी जारी करके शांत रहने में सक्षम होते हैं। दिस इज ट्रू। Second is the fifth question is, in order to save its water, the awaki plant drop its root to survive the desert heat. It is false because awaki leaves store the plant's water and are crucial to its continued existence. The coated leaf surface prevents evaporation. The leaves also have sharp spikes. The spike discourage predators from eating the plant or using it as a source of water and are so tough that ancient peoples use them for sieving litter. ये अगावे के जो पत्ते होते हैं वो संयंत्र के पानी और अपने निरंतर अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। लेपित पत्ती की सतह वाष्पीकरण को रोकती है। पत्तियों में तेज नुकीला किनारा भी होता है। स्पाइक शिकारियों को पौधे खाने या पानी के स्रोत के रूप में उपयोग करने से हतोत्साहित करते हैं और इतने कठिन होते हैं कि प्राचीन लोग इन्हें सिलाई सुइयों के लिए इस्तेमाल करते थे। The last one is given of the mesquite plants uses long roots which sometimes can reach 60 feet in depth to reach far below the sand in order to get water from the water table. This also is true. इस तरह के पौधे जो है वो बहुत लंबे लंबे जड़ों का उपयोग करते हैं पानी की सतह को प्राप्त करने के लिए। भी काफी लंबी जड़ों का उपयोग करता है जो कभी कभी 60 फीट गहराई तक पहुंच सकता है पानी की सतह से पानी प्राप्त करने के लिए, रेत के नीचे तक पहुंचने के लिए। Now, thanks.